بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم میتھمیٹکس کلاس 11 جس کا چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، لیکن چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ جن بچوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، جس میں ہمارے پاس چیپٹرز کا نام ہے تھیوری آف کوارڈریٹک فنکشنز۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے۔ A quadratic function is a polynomial function of degree 2. It is typically expressed in the standard form fx is equal to ax square plus bx plus c۔ تو یہ ایسا فنکشن جس میں پولینامل کی ڈگری جو ہے وہ 2 ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس کو ہم اسٹینڈرڈ فارم میں اس طرح جو ہے وہ ایکسپریس کرتے ہیں۔ where a b c are real numbers and a not equal to 0۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس تھی کوارڈریٹک فنکشنز کی ڈیفینیشن، جو کہ آلریڈی آپ جو ہے وہ میٹرک کلاس میں پڑھ کے آ چکے ہیں کوارڈریٹک ایکویشن کے بارے میں۔ تو اس پہ مزید ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے بعد ہے جی سیکنڈ ڈیفینیشن ہے اینالائزنگ کوارڈریٹک فنکشنز بائی اسکیچنگ، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کہہ رہا ہے جی ایز وی ناؤ شیپ آف دا گراف آف اے کوارڈریٹک فنکشن ایف ایکس اکول ٹو اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی از اے پیرابولا، یعنی کہ جب ہم کوارڈریٹک فنکشنز کو گراف کی فارم میں ڈرا کرتے ہیں تو وہ پیرابولا کی شیپ دیتا ہے۔ دا پیرابولا اوپنس اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ، یعنی کہ جو پیرابولا ہے وہ یا تو اپورڈ اوپن ہوگا یا ڈاؤن ورڈ ہوگا، لیکن اپورڈ یا ڈاؤن ورڈ کب ہوگا؟ اٹس ڈپینڈنگ آن دا سائن آف دا لیڈنگ کوفیشینٹ اے، یعنی کہ جو اے کوفیشینٹ ہے اس کا لیڈنگ کوفیشینٹ، اس پہ ڈپینڈ ہوگا کہ اس کا جو فیس ہے، یعنی کہ اس کا جو اپنا جو اس کا بولتے ہیں فیس، وہ اپورڈ ہوگا یا ڈاؤن ورڈ ہوگا، ٹھیک ہے، پیرابولا کا۔ تو اس پہ ڈپینڈ کرے گا ایز شون ان دا گیون فگر، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کے پاس ایک تصویر اوپن کی فارم میں اور کلوز کی فارم میں دی گئی ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہے اپورڈ اور یہ ڈاؤن ورڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے پاس ایک پیرابولا، اگر ایکس ایکسس اور وائی ایکسس اس طرح ڈرا کریں تو یہ ہمارے پاس ایک پیرابولا بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، اپورڈ اور ڈاؤن ورڈ، ٹھیک ہے۔ دا گیون فگر اف اے گریٹر دین 0 دین دا ورٹیکس از اے منیمم پوائنٹ، یعنی کہ اگر ہمارے پاس اے جو ہے وہ 0 سے بڑا ہوگا تو ہمارے پاس منیمم پوائنٹ ہوگا اور اس کا پیرابولا کا فیس جو ہے وہ اپورڈ ہوگا، اور اگر اے جو ہے وہ آپ کے پاس لیس دین 0 آئے دین دا ورٹیکس از اے میکسیمم پوائنٹ، ٹھیک ہے، اس کا ورٹیکس کا پوائنٹ جو ہے وہ میکسیمم ہوگا اور اس کا فیس جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہوگا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ تو اب ہم نیکسٹ اپنے کوسچن کی طرف آتے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 ہے ایکسرسائز 3.1 کا، فائنڈ دا منیمم اور میکسیمم ویلیو آف دا فالوئنگ کوارڈریٹک فنکشنز بائی کمپلیٹنگ اسکوائر۔ کہہ رہے جی آپ نے منیمم اور میکسیمم ویلیو جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے، کس کی؟ کوارڈریٹک فنکشنز کی۔ کون سے فارمولے سے، کون سے میتھڈ سے؟ بائی کمپلیٹنگ اسکوائر سے، ٹھیک ہے جی۔ تو کمپلیٹنگ اسکوائر چونکہ اسٹوڈنٹ آپ پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کوارڈریٹک فنکشنز کو سالو کرنے کے 3 میتھڈ ہیں۔ ایک آپ کے پاس فیکٹرائزیشن ہے، سیکنڈ آپ کے پاس کمپلیٹنگ اسکوائر ہوتا ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ آپ کے پاس کوارڈریٹک فارمولا ہے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو ایک فنکشنز گیون ہوگا، ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کمپلیٹنگ اسکوائر کے میتھڈ سالو کریں گے۔ یہ ہمارے پاس ایک نوٹ ہے کہ اگر اے کی ویلیو اگر پازیٹیو ہو تو منیمم، اور اگر اے کی ویلیو نیگیٹیو ہو تو میکسیمم، جیسے کہ میں نے آپ کو ڈیفینیشن میں بھی ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہم کوسچن کی طرف آتے ہیں۔ ایکس اسکوائر پلس 6x پلس 9 پلس 4، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے پاس ایک کوارڈریٹک فنکشنز تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کمپلیٹنگ اسکوائر سے سالو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کمپلیٹنگ اسکوائر کو سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو فارمولا ہے وہ کچھ یوں بنے گا، اے پلس بی کا ہول اسکوائر ایکول ہوتا ہے اے اسکوائر پلس 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे माइनस आए तो इधर भी माइनस आएगा, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमने ये वाली साइड बनानी है और ये फिर क्लोज करेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट तो एक पॉलिनॉमियल जो है उसकी डिग्री 2 है, दूसरे की 1 है, ठीक है जी। और एक कांस्टेंट साथ दिया होता है। इसमें भी अगर आप देखें तो आपके पास एक जो है पॉलिनॉमियल उसकी डिग्री 2 होगी, ठीक है। इनके ए का स्क्वायर है प्लस 2ab, ये दो वैल्यू आपको दी गई होंगी, ठीक है जी, क्वेश्चन के अंदर। इसमें से आपने बी जो है वो निकालना है, ठीक है। जो सेकंड वैल्यू होगी ना जिसकी पावर 1 होगी पॉलिनॉमियल की, उसमें से आपने बी निकालना है, ठीक है जी। अब इसमें आपने क्या करना है, जो सेकंड वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 6x है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये काम आपने रफ अमल में करना है। तो आपने 6x को डिवाइड करना है, यानी कि x के साथ जो वैल्यू होगी ना उसको आपने डिवाइड करना है किस पे, 2 पे। तो 6 को 2 पे डिवाइड किया स्टूडेंट तो क्या आंसर आ गया, 3। अब ये 3 का स्क्वायर जो होगा ना वो आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है जी। तो 3 का स्क्वायर चूँकि 9 होता है, ठीक है जी। तो 9 13 के अंदर मौजूद है, तो मैंने क्या किया, इस 13 में से 9 लैदा कर लिया और +4 कर दिया, ठीक है जी। इस तरह कर लें, या फिर आप इसमें +9 -9 लिख के आगे 13 लिख लें, फिर भी एक ही बात है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको ये फार्मूला बताया है इसके अकॉर्डिंग राइट साइड जो लेफ़्ट साइड के बराबर है, तो यहाँ से ये वाली साइड है इस साइड के बराबर आ गई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया x+3 का कंप्लीट होल स्क्वायर +4। अब उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे x ये जो प्लस है इसको माइनस माइनस में कन्वर्ट करेंगे। एक माइनस इधर लगा दें, एक माइनस इधर लगा दें, क्यों, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस जो है वो प्लस के बराबर होता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट ये +4 आ गया। अब इसको हमने ये माइनस में क्यों कन्वर्ट किया है, उसकी रीज़न ये है, कहता है जी कंपेयर विद f(x) = a × x - h स्क्वायर प्लस k। तो चूँकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, और मैंने आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शंस गिवन है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जो है वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो लिहाजा हमने इसको निकालना था। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास 1 है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि ये a जो है 1 है, x एज इट इज़ आ गया, h जो है वो आपके पास -3, क्योंकि यहाँ फार्मूले में माइनस है इसलिए हमने इसको प्लस को माइनस माइनस में कन्वर्ट किया था, और k जो है वो 4 आ जाएगा। कहता है जी हेयर a = 1 > 0, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू एट x = -3, ठीक है जी। क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना, तो उसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी, जैसे मैंने यहाँ बताया। ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमम, ठीक है जी, मिनिमम होगा। तो लिहाजा ये जो है वो = 1, और 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव है। तो मिनिमम वैल्यू एट x = -3, ठीक है जी। एट x = -3, यहाँ से h जो है वो -3 इज़ 4, ठीक है। 4 जो आपके पास k है। तो ये स्टूडेंट आपका पहला जो पार्ट है इसका वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट है इसका। तो इसमें स्टूडेंट आपके पास फंक्शन f(x) = x² + 4x, कहता है जी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4 ऑन राइट साइड। क्यों कि आपको मैंने बताया था कि x के साथ जो रकम होगी उसको आपने डिवाइड करना है 2 पे। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया 2। अब ये 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे नहीं करना है, ठीक है, राइट साइड पे करना है आपने। तो ये आ जाएगा x² + 4x + 4 - 4। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है ये आपके पास मिलके एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएगी, x + 2 का होल स्क्वायर, और ये -4 साथ आ जाएगा। अब इस प्लस को स्टूडेंट फिर हम माइनस और माइनस में कन्वर्ट करेंगे, एक -2 के साथ लगा देंगे, एक माइनस बाहर रख देंगे, और होल स्क्वायर -4। कंपेयर विद a × x - h होल स्क्वायर प्लस k। हेयर a जो है वो आपके पास 1 है, क्योंकि बाहर कोई वैल्यू नहीं, तो लिहाजा यहाँ पे 1 होगा। तो 1 > 0, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू एट x = -2, ठीक है। x = -2 इज़ -4, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह सेम कहता है ये f(x) = -x² + 8x + 13 है। अब इसमें देखें स्टूडेंट हमारे पास ये -x² है, तो जब हम फार्मूला लिखते हैं ना
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसमें आपके पास जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है जी, ये देखें ये पॉजिटिव है ना, तो लिहाजा फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे इन दोनों रकमों से, क्योंकि हमें सिर्फ पहली दो चाहिए, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है। अब इसमें माइनस जब कॉमन लिया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है जी, अब 8 को हमने डिवाइड किया 2 पे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास 4 आ गया। अब 4 का स्क्वायर आपने लेना है, वो आ जाएगा 16, और 16 को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें, तो ये प्लस 13 वैसे साथ लिख देंगे। अब ये तीन वैल्यू स्टूडेंट मिल के आपके पास x माइनस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 16 साथ आ गया, प्लस 13, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा सारे के साथ, और ये माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 13 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 29। कहता है कंपेयर विद एफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला है जिससे हम कंपेयर करके मैक्सिमम मिनिमम जो है वो बताते हैं। तो ये स्टूडेंट आ गया देयर फॉर मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 4 इज़ 29। मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि ए जो है वो हमारे पास नेगेटिव था। ठीक है, इनके ए की वैल्यू -1 थी, लेस देन 0, तो लिहाजा मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसके बाद कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जे एक्स माइनस 5। तो सेम उसी तरह स्टूडेंट हमने क्या किया, इस वैल्यू को पॉजिटिव रखना है हमने, तो इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया। उसके बाद स्टूडेंट हमने 3 को 2 पे डिवाइड किया, क्योंकि x के साथ जो वैल्यू होगी उसको 2 पे डिवाइड करना है, तो 3/2 आ गया। ठीक है, अब 3/2 का स्क्वायर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, तो ये आ गया 9/4 माइनस 9/4। ठीक है जी, अब उसके बाद ये पहली तीन वैल्यू मिलके कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, -9/4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये माइनस जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस इसके साथ आएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 9/4 माइनस 5। अब इन दोनों का स्टूडेंट आप एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है, 4 एलसीएम आ गया, 4 को 4 पे डिवाइड करें 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, फिर उसके बाद 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया -20, और 20 में से 9 निकाले तो -11/4 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद एफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। तो कहता है ये ए इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ माइनस है तो लिहाजा -1 आ जाएगा, लेस देन 0, देयर फोर द मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू -3/2। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ प्लस आए, क्योंकि फार्मूले में माइनस है तो हमें यहाँ माइनस लाना है, तो इसको हमने लिखना है x माइनस इंटू -3/2 होल स्क्वायर -11/4। ठीक है जी, तो ये आ गया -3/2 इज़ -11/4 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 6x माइनस 13। तो इसमें भी आप देखें एक्स स्क्वायर जो है वो हमें अकेला चाहिए स्टूडेंट, तो उसके साथ वैल्यू है 3, तो 3 हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया ताकि हम इसको कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लेके जा सकें। तो 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 13। तो इन दोनों में अब x के साथ जो वैल्यू है वो 2 है, तो स्टूडेंट 2 को हमने डिवाइड किया 2 पे तो 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 1 -1 माइनस 13, तो +1 इसके साथ मिलकर स्टूडेंट हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, ये -1 आ गया। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दे दोनों के साथ दोबारा, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, तो -3 -13 -16 आ जाएगा। और ये स्टूडेंट प्लस को माइनस माइनस में कन्वर्ट किया, उसके बाद हम इसको कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के आ जाएगा। ठीक है जी, और हेयर ए जो है वो आपके पास 3 है। ठीक है, यहाँ पे तो 3 ग्रेटर देन 0 होता है, देयर फोर द मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू -1 इज़ -16 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद पार्ट नंबर 6 है एफ एक्स इक्वल टू -2x² माइनस एक्स प्लस 21। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने उसी तरह ही -2 जो है वो कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x² प्लस x/2 प्लस 21 वैसे लिख देंगे। अब x/2 है स्टूडेंट, तो x/2 का मतलब 1/2, x को तो निकाल देंगे ना उसमें, अब इसको 2 पे दोबारा डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब 1/4 का स्क्वायर जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/16 प्लस में
और माइनस में 1/16 आ जाएगा। तो प्लस वाला जो है वो इन तीनों के साथ मिलकर ये आपका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। -1/16 वैसे लिख देंगे। अब -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2 को इसके साथ लिखेंगे वो सेम एज इट इज़। -2 को -1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/8 आ जाएगा, +21। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 8 एलसीएम आ जाएगा। 8 को 8 पे डिवाइड करें 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। फिर 8 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद कहता है जी f(x) = -2 × x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, +169/8 आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ से हमने क्या किया, प्लस को माइनस में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने इसको कंपेयर कर दिया इसके साथ। ठीक है जी, ये फार्मूला हमारे पास। तो कहता है जी a जो है वो आपके पास -2 है, तो <0 देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू एट x = -1/4 इज़ 169/8 आ गया। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, और उसके बाद हमने स्केच करना है द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, जो क्वाड्रेटिक फंक्शंस गिवन होगा। आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज, और उसकी डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन गिवन है f(x) = x² - 4x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शंस की फॉर्म है। ठीक है जी। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फंक्शंस जो है वो इसके इक्वल होता है ax² + bx + c के। ठीक है जी। तो यहाँ पे x² भी है, x भी है, कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट आप यहाँ पे 0 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी। कहता है जी a, यानी कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो a जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है, और b जो है वो -4 आ जाएगा, और c जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट टू फाइंड, कहते हैं जी हमने ग्राफ जो है वो ड्रा करना फॉर स्केचिंग। तो फर्स्ट वी फाइंड, सारी बात हमें y एक्सिस और y एक्सिस और x एक्सिस पे कुछ वैल्यू मालूम होंगी तो हम ग्राफ ड्रा करेंगे ना। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेते हैं जी y इंटरसेप्ट जब लेट करेंगे तो उसमें x जो है वो 0 हो जाएगा आपका। ठीक है जी। तो x 0 होगा, तो इसका मतलब ये है कि y = f × 0 = 0 का स्क्वायर -4 × 0, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो वी गेट द पॉइंट 0 एंड 0। ठीक है, जिनके x भी 0 और y भी 0। कहते हैं टू फाइंड x इंटरसेप्ट y = 0, इनका पुट हम एक दफ़ा हम x 0 पुट करेंगे, एक दफ़ा y 0 पुट करेंगे। जब y 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x² -4x, और इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x × x -4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो पॉइंट है वो आ जाएगा x = 0 और x -4 = 0 और x = 4 आ जाएगा। तो वी गेट 0 0 एंड 4 0, यानी कि y 0 पुट किया था, x की एक वैल्यू 0 आ गई, एक 4 आ गई। उसके बाद जो हमने वर्टेक्स फाइंड करने हैं इसका। ठीक है, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है h = -b/2a। अब इसमें कहता है जी b जो है आपके पास -4 था और a जो है 1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4/2 आ गया, तो 2 आ जाएगा h। उसके बाद हमने k फाइंड करना शुरू। तो k फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि जो h की वैल्यू है उसको आपने जो हमारा फंक्शन था उसमें पुट कर दें। ठीक है जी। दूसरा फार्मूला भी है, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो बताएंगे। ठीक है जी। उससे भी आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो है c - b²/2a। ठीक है जी। तो उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया k = (2 square -4 × 2 = -4), तो ये आ जाएगा, मतलब 4 - 8 तो -4 आ गए। तो वर्टेक्स हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2 एंड -4। ठीक है जी। अब इसको आप जो है वो ड्रा कर लें यहाँ पे।
تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا. سب سے پہلے پوائنٹ آیا تھا 0 0. تو یہ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس جب ہم نے ایکس 0 پٹ کیا تو وائی بھی 0 آیا تھا. اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہم نے وائی 0 پٹ کیا, ایکس کی ویلیو ایک 0 0 آ گئی, مطلب ایک یہ پوائنٹ آ گیا. دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس آیا 4 0. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس 4 0 ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ورٹیکس آیا تھا 2 اینڈ -4. تو اسی پہ ہم نے دیکھا ایکس کے سامنے 2 ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ 2 لگا دیا. ادھر وائی ایکسس پہ نیگیٹو پہ -4. تو دونوں کا اس طرح جو کامن پوائنٹ تھا وہ ہمارے پاس ورٹیکس آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کیا کیا کہ ان تینوں پوائنٹس کو آپس میں ملا دیا ہم نے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارے پاس اس کا گراف جو ہے وہ ڈرا ہو گیا. اس کے بعد اس نے کہا تھا جی ڈومین اور رینج بھی فائنڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ڈومین اس میں جو ہے وہ سب کی -انفینٹی سے انفینٹی ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس جو کوآرڈینیٹ فنکشنز ہے اس میں آپ کچھ بھی پٹ کریں. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ویلیو دے گا, کیونکہ سارے فنکشن جو ہے وہ انڈر روٹ کے بغیر ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو ہمارے پاس انڈر روٹ میں آ جائیں تو اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کمپلیکس ویلیو میں نہ جائے. ٹھیک ہے جی, نیگیٹو میں نہ جائے. تو اس لیے یہ سارے انڈر روٹ کے بغیر ہیں, تو اس میں ہم نے آر ریئل نمبر جو ہے وہ پٹ کر سکتے ہیں -انفینٹی سے لے کے انفینٹی تک, لیکن -انفینٹی اور انفینٹی پٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد رینج ہے. تو رینج آپ کس طرح فائنڈ کریں گے, یہ ہمارے پاس جو سمپل سا ٹرک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رینج کیسے آپ نے لکھنا ہے. جو آپ کے پاس کے کی ویلیو آئے گی نا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے, اور وہ آپ نے کلوز بریکٹ میں لکھنا ہے. ٹھیک, کلوز بریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ -4 جو ہے وہ اس میں انکلوڈ ہے. ٹھیک ہے جی, -4 سے لے کے انفینٹی تک. اوکے اسٹوڈنٹ. تو سمپل آپ نے رینج جو ہے وہ کس طرح لکھنی ہے, یہ جو کے کی ویلیو آئے گی یہ یہاں پہ لکھنی ہے اور اس کو کلوز بریکٹ لگانی ہے, اور دوسری طرف انفینٹی لگا کے اوپن بریکٹ لگانی ہے. ٹھیک ہے, اوپن بریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ والا نمبر جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا, لیکن اس سے پچھلے سارے نمبر شامل ہوتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹ. تو اس کے بعد کہتے ہیں جی اے ہے, یہاں پہ اے شروع میں ہم نے دیکھ لیا تھا 1 ہے, تو >0, سو منیمم ویلیو ایٹ x = 2 از -4. ٹھیک ہے جی. x = 2 جو ہے وہ ہمارے پاس h ہے, اور اس -4 جو ہے وہ k ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ اسٹوڈنٹ آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اگر >0 آئے گا تو اس کا فیس جو ہے وہ اوپر کی طرف اوپن ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ گراف میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ والا پارٹ ہے اس کا fx = x² - 5x + 6. ہیئر کہتا ہے جی اے جو ہے 1 ہے, بی -5 ہے, اور سی جو ہے وہ 6 ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کہتے ہیں وائی انٹرسیپٹ پٹ x = 0, ان کے x جو ہے ہم نے 0 پٹ کیا ہے, تو y = f0 = 0² - 5 × 0 + 6. تو y آ گیا 6, وی گیٹ 0 اینڈ 6 پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کہتا ہے جی x انٹرسیپٹ جب فائنڈ کرنا ہے تو y کو 0 رکھیں گے, تو y کی ویلیو آ جائے گی 0 = x² - 5x + 6. تو اب ہم نے اسٹوڈنٹ اس کو کرنا ہے فیکٹرائز. کیا کرنا ہے, فیکٹرائز کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو فیکٹرائز کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا x² - 3x - 2x + 6. تو 0 = x × x - 3. ٹھیک ہے, کیونکہ ان دو نمبرز کو ملٹیپلائی کریں 6 آتا ہے, ایڈ کریں تو 5 آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آ جائے گا 0 = x × x - 3 - 2x × x - 3, اور یہ آ جائے گا x - 3 اینڈ x - 2 آ جائے گا. تو x = 3 آ جائے گا اور x = 2 آ جائے گا. اچھا اسٹوڈنٹ, اس کے بعد ہم نے ورٹیکس نکالنے ہیں. ایچ جو ہے وہ ہمارے پاس برابر ہے -b/2a = -5/2 × 1 ایکول آ جائے گا 5/2 کے. اس کے بعد ہم نے کے فائنڈ کرنا اسٹوڈنٹ, تو میں نے بتایا تھا جو ایچ کی ویلیو ہے وہ آپ نے فنکشن میں پٹ کر دینی ہے. تو 5/2 کا اسکوائر -5 × 5/2 + 6, تو یہ آ جائے گا 25/4 - 25/2 + 6 آ گیا. اب اس کا ایلشیم لیں گے تو 4 ایلشیم آ جائے گا اسٹوڈنٹ, 25 ویسے ہی آ جائے گا, 2 2 4 اور 2 25 50 آ جائے گا. 4 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں تو 24 آ جائے گا. تو یہ ہمارے پاس کینسلیشن کے بعد, کیونکہ 25 اور 24 49 میں سے 50 مائنس کریں تو -1/4 آ جائے گا. تو ورٹیکس اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ گیا 5/2 اینڈ -1/4. کہتا ہے یہ اے جو ہے وہ ہمارے پاس 1 ہے, تو 1 > 0 ہوتا ہے. سو منیمم ویلیو ایٹ x = 5/2 از -1/4 آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد کہتے ہیں ڈومین آپ کو میں نے بتائی تھی کہ سب کی -انفینٹی سے انفینٹی ہی رکھنی ہے, اور رینج جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو کے کی ویلیو آئے گی ہمارے پاس وہ لکھ کے اس کو کلوز بریکٹ لگا دیں, اور انفینٹی تک آپ نے اس کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو گراف میں ڈرا کرتے ہیں.
तो ग्राफ में स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसी तरह हमने ड्रा कर दिया। अब इसमें क्या है जी, आपके पास 1 2 3 4 5 6 एक्स एक्सिस में और 6 ही मैंने वाई एक्सिस पे ड्रा किए। तो जब हमने स्टूडेंट एक्स जब 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू आई थी 6। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो पॉइंट है ये 0 एंड 6 है, ठीक है। तो हमने वाई एक्सिस पे इसको ड्रा कर दिया पॉइंट को, ये वाला। उसके बाद एक्स की 2 वैल्यू आई थी स्टूडेंट, एक 2 आई थी एक 3 आई थी। तो हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया। उसके बाद हमारे पास वर्टेक्स आया था 5 और 2 -1 और 4, तो वो यहाँ पे बनता है। तो लिहाजा स्टूडेंट हमने इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है जी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। हेयर कहता है जी ए इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू -8। टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने 0 पुट किया एक्स की जगह, तो वाई की वैल्यू आ गई -8। फिर हमने वाई 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू हमारे पास जो है वो देखें यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शंस था क्योंकि फैक्टराइज नहीं था हो रहा। तो हमने क्या किया यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया। ए जो है 1 है, बी जो आ जाएगा -2 और सी आ जाएगा 8। क्योंकि यहाँ -x² तो माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू लिख ली। तो x बराबर है -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे फार्मूला जो है वो लगाना है, ठीक है जी। फार्मूला क्या है, -b प्लस -b² -4ac √2a, ठीक है जी। ये फार्मूला हमारे पास। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + -4 आ गया, और ये 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, तो -28, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे -28 आ गए। तो ये हमारे पास इमेजिनरी है, तो लिहाजा हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने चूँकि इसको स्केच तो करना है, तो उसके लिए फिर हम खुद से कुछ वैल्यू जो है वो ज़ूम कर लेते हैं। वो हमने 2 पहले पुट किया एक्स में, इनके इस एक्स में -2 पुट किया तो वाई आ गया 8। फिर हमने यहाँ पे 4 पुट किया -16 -2 पुट किया तो वो भी -16 आ गया, ठीक है जी। तो अब इसमें कहते हैं जी एच और जारी बात है हमने के भी फाइंड करना है। तो उसमें आप देख सकते हैं एच की वैल्यू जो है वो इक्वल है -b/2a बराबर आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2 × -1, ठीक है जी। -2 × +2 और 2 × -1, तो इसको हमने जब कैंसिल किया तो 1 आ गया, माइनस माइनस से कट गया। उसके बाद के जो है मैंने स्टूडेंट कहा था आप एक और फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, तो वो ये फार्मूला है c - b²/4a, ठीक है जी। आप h को फंक्शन में पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं और इसमें भी पुट करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी, जैसे आपको आसान लगता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -8 -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 × -1, तो ये आ जाएगा -4 और ऊपर +4, ठीक है जी। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -8 + 1 जो है ये -7 आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास एच और के वर्टेक्स आ गया 1 एंड -7। अब स्टूडेंट हम इसको ग्राफ में जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो ये आपके पास ग्राफ है, तो ये आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्स एक्सिस पे, और इसी तरह नेगेटिव साइड पे पुट वैल्यू लिखी है, और इसी तरह ये वाई एक्सिस है, ठीक है जी। तो ये वाई नेगेटिव एक्सिस पे भी हमने पुट कर दिया। तो यहाँ पर सुन आप देख सकते हैं जब हमारे पास पॉइंट था 2 प्लस का, ठीक है, 2 प्लस का, तो वैल्यू थी -8, उसका जो वाई का जवाब आया था जब हमने x2 पुट किया था। उसके बाद हमने x जो है वो 4 पुट किया और हमारे पास जवाब आया -16, ठीक है। तो ये हमने इधर -16 और इधर 4 इसको नीचे लगा के ये पॉइंट कॉमन बनता था ये लगा दिया। उसके बाद वर्टेक्स आया था 1 एंड -7, वो हमने यहाँ पे लगाया। उसके बाद -2 पुट किया था स्टूडेंट हमने, तो वो -16 के बराबर आया था, ठीक है जी। अब ये सारे पॉइंट्स हमने आपस में मिला दिए, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया स्टूडेंट, ठीक है जी। अब चूँकि हमारे पास ए जो है वो हमारे पास था -1, तो -1 होता है <0, तो लिहाजा हमारे पास जो इसका फेस था वो डाउनवर्ड होना था, ठीक है जी। और मैक्सिमम वैल्यू हमारी होनी थी x = 1 इज़ -7, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू x² - 4x + 4। तो कहता है हेयर a = 1, b = -4, c = 4 आ गया। तो टू फाइंड वर्टेक्स, तो सबसे पहले अब हम वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। तो कहते हैं कि वर्टेक्स के लिए हमने फार्मूला बताया था आपको h = -b/2a। तो हमने b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी।
तो बी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई माइनस इंटू -4 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4/2 और 2 आ जाएगा। जब के जो है वो बराबर है सी माइनस बी स्क्र और 4 है, तो सी की वैल्यू 4 है माइनस बी की वैल्यू -4 होल स्क्र डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 16 और 4, 16 को 4 पर डिवाइड किया 4 आ गया, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो जी ए जो है वो हमारे पास 1 है, तो 1 चूँकि ग्रेटर दैन 0 है, सो मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू इज़ 0। तो डोमेन चूँकि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट के माइनस से इन्फिनिटी होगी सबकी, और रेंज जो है वो मैंने बताया था आपको के की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख के आपने इन्फिनिटी लिख देना है। ठीक है जी। और इन्फिनिटी की तरफ ओपन और 0 की तरफ क्लोज। अब उसके बाद आता है जी ये सारा कुछ हमने फाइंड कर लिया। इनको उसने 3 चीज़ें हमें बोली थी, एक वर्टेक्स, एक उसने कहा था डोमेन रेंज, और दूसरा उसने बोला था ग्राफ को स्केच करें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस को। तो अब यहाँ पे हमने वर्टेक्स फाइंड कर लिया, डोमेन रेंज भी कर लिए। अब स्केच की तरफ आते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसी तरह ही पुट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है जो, और वाई इक्वल टू 0 जो है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू आ गई 4, फिर हमने वाई 0 पुट किया तो ये आ गया एक्स माइनस 2 का होल स्केयर। तो ये स्केयर जब अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा और एक्स वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने क्या किया, जो ये 4 आ गया और उसके बाद ये आ जाएगा 2 आ गया। ठीक है जी, इनका 2 और 0, जो हमारा वर्टेक्स था वो भी 2 0 था, तो लिहाजा ये एक ही पॉइंट होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दे तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, कहता है जी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3। तो इसमें हमने सबसे पहले कहता है ये है ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू 8.3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पे वर्टेक्स फाइंड किया, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -1, और के की वैल्यू आ जाएगा सी माइनस बी स्क्र ओवर 4 इज इक्वल आ जाएगा -8.3, -2 का स्क्र डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 4 ओवर 4, -1 आ गया तो -8.3 -1 तो -9 ओवर 3 आ जाएगा। उसके बाद कहता है हेयर सो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू -1 इज़ -9.3। तो डोमेन स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया था वो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज आ जाएगी -9.3 से इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो इसमें ये रेंज है ये आपने क्लोज लगानी है ब्रैकेट। तो कहता है फॉर स्केच एक्स इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 0 का स्केयर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 8.3, वाई आ जाएगा -8.3, और वाई जो है वो 0 रखेंगे तो एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 8.3। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट हमारे पास ये फैक्टराइज नहीं होता, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमारे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू -8.3 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 33.2 प्लस 4 37.2 आ गया। इसका जब स्केयर लेंगे तो ये राउंड अबाउट जो है वो 6.002 आता है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 प्लस 2 और 6 माइनस 2 करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, -2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4/2, और 2 आ गया -8/2 और -4 आ जाएगा। ठीक है जी। तो एक्स की 2 वैल्यू आ गई और वाई की हमारे पास आ जाएगी -8.3। तो इसको स्टूडेंट हम ग्राफ में ड्रा करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे देखें आप एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट हमने 2 0 पुट किया और यहाँ पे -4 0, जैसे कि ये हमारे पास पॉइंट थे नेगेटिव साइड पे एक्स एक्सिस, और जो वर्टेक्स था वो हमारे पास आ गया था -1 और -9.3, और ये हमारे पास वाई का पॉइंट आया था 0 एंड -8.3 आ गया। ठीक है जी। तो इन सारे पॉइंट्स को आपस में हमने मिला दिया, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट एफ एक्स इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इसको रीअरेंज किया तो ये आ गया -x स्क्वायर -x प्लस 6। तो कहते हैं ये a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 6। वर्टेक्स फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू -b/2 है, तो माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/-2 आ जाएगा, और k जो है वो बराबर आ जाएगा c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4 है। ठीक है जी। तो चूँकि स्टूडेंट मैंने आपको बताया भी था कि जो h की वैल्यू वो या तो फंक्शन में पुट कर दें इसमें, या आपके पास ये फार्मूला इसमें पुट कर दें, सेम आंसर आएगा। तो लिहाजा मैंने अब इसमें पुट किया तो ये आ गया 6 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू -1, तो ये आ जाएगा 6 माइनस इंटू 1/-4 इक्वल टू 6 प्लस 1/4। इसका एल्सियम लेंगे तो 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 25/4 आ जाएगा हमारे पास के। तो वर्टेक्स आ गया हमारे पास स्टूडेंट -1/2 एंड 25/4।
here a is equal to -1 less than 0, maximum value x is equal to -1 over 2 is a 25/4। तो डोमेन आगे के स्टूडेंट हमारे पास सबकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और रेंज मैंने आपको बताया था कि ये देखो 25/4 है, ठीक है जी। अब इसको हमने डिवाइड किया तो ये ऑलमोस्ट बनती है 6 पॉइंट समथिंग बनती है, ठीक है जी। तो जब हम इसको फंक्शन में पुट करते हैं तो आपके पास नेगेटिव जो है वैल्यू देना शुरू कर देगा। तो हमने अब क्या करना है कि ये के जी वैल्यू है के की वो 25/4 लिख के तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका रेंज आ जाएगा। उसके बाद कहता है फॉर स्केच, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -0 स्क्वायर -0 + 6, तो 6 आ जाएगा, वी गेट 0 6। तो y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3x - 2x आ गया, ठीक है जी। तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास x + 3 एंड x - 2 इज इक्वल टू 0, और x की दो वैल्यू आ जाएंगी 2 एंड -3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट हमने इसको ड्रा करना है, तो ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका x एक्सिस और y एक्सिस पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 है और -3 है, एक 2 है, 2 x एक्सिस पे हमने लगाया और -3 जो है वो नेगेटिव x एक्सिस साइड पे लगाया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया कि y जो है वो 6 तक था, ठीक है जी। ये हमारे पास 6 था, ठीक है जी, 0 6। तो ये आ जाएगा, उसमें हमारे पास आ जाएगा -1/2 एंड 25/6 आ गया, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 6 था, इसमें आ गया -1/2 25/4। तो ये हमने इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स का ग्राफ आ जाएगा।